Good morning. Am I audible to you? Yes, sir. Okay. Kindly inform your classmate that class is going on. Okay, sir. I am informing all of. Okay. Hello. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. Till now, 8 of you have joined. We will wait another 2 to 3 minutes so that everyone can join. In the meantime, if you have any doubt regarding previous classes, then you can ask. I think in the previous classes, up till SJF, we have completed. Am I right? Yes, sir. ओके सो कोई डाउट है आप लोग को एसजेएफ तक? तो आप लोग काइंडली शेयर दैट डाउट. सर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर दीजिए ना सर एसजीएफ के बारे में एक बार फिर से. ओके, एसजेएफ के बारे में. और एफसीएफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर.
FCFS और ये कॉन्वॉय इफेक्ट वगैरह जो प्रॉब्लम था FCFS का उसके बारे में. ओके, सो आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ description related with SJF. Okay, so for SJF, सभी को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? Yes, student, please respond. Are Yes, you sir. able to? Okay, so we will start with SJF. SJF, what it simply means, shortest job first. Okay, so among all the jobs which we have, like P1 है हमारे पास, P2 है, P3 है, P4 है, जितने भी जॉब है हमारे पास, इन सभी जॉब में हम क्या करेंगे? We will select such job which has lowest क्या? burst time. Okay, सबसे लोएस्ट वैल्यू जिसकी बर्स्ट टाइम की जिसकी होगी, हम उस जॉब को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे एंड we will give that particular process. I am assuming PX हमारा सेलेक्ट हुआ जिसका कि सबसे लोएस्ट बर्स्ट टाइम था, और इसको हम क्या करेंगे? We will give it to the CPU. ओके, CPU को हम प्रोवाइड कर देंगे और CPU क्या करेगा? इसको प्रोसेस करेगा. एंड एज आई इन्फॉर्म्ड यू एंड वांट टू टेल यू अगेन दैट आपका क्या होता है? SJF जो होता है ये नॉन प्रिमिटिव इन नेचर होता है. इट मीन्स दैट once the CPU is allocated to a process, that process will complete its processing, and after that it will leave that CPU. In the meantime of processing, जब तक कि इसका burst time अभी complete नहीं हुआ है, तब तक कोई दूसरा प्रोसेस इंटरवीन नहीं कर सकता. गेट इट? कोई इंटरवीन नहीं कर सकता. जब ये मैंने बताया था ना आपको, आई थिंक देयर आर सर्टेन स्टेट्स. These are the states in which a process can be न्यू में हो सकता है, रेडी में हो सकता है, रनिंग में हो सकता है, वेटिंग में हो सकता है, या एग्जिट में हो सकता है. अब अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है फॉर द SJF शेड्यूलिंग, तो वो क्या करेगा? टिल दैट विल बी मेंटेन्ड, जब तक कि वो एग्जिट स्टेट में ना चला जाए. और जैसे ही यहाँ ये एग्जिट स्टेट में चला जाएगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव टू सेलेक्ट अमंग रिमेनिंग प्रोसेस. PX के अलावा अब जो रिमेनिंग प्रोसेस रहेंगे हमारे पास, उनमें जो सबसे कम बर्स्ट टाइम होगा, जिनका सबसे लोएस्ट बर्स्ट टाइम होगा, हम उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से रनिंग स्टेट में लेके आएंगे. ठीक है? तो इस तरह से क्या होगा? बाय दिस प्रोसीजर we will have via this process we will have smallest burst time process in the CPU. Okay, so स्मॉलेस्ट जो बर्स्ट टाइम होगा वो हमेशा CPU में आएगा और वो एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है? तो इस तरह से when we will draw the Gantt chart, जब हम लोग Gantt चार्ट ड्रॉ कर रहे होंगे, तो उसमें क्या होगा? यस बेटा, अभी काम कर रहे हैं, मम्मी के पास जाइए, मम्मी के पास.
हाँ, तो जो स्मॉलेस्ट होगा उनका सिलेक्शन होगा। तो जो गैंट चार्ट का फॉर्मेशन होगा, इस गैंट चार्ट में क्या होगा, अगर हम देखें कि देखेंगे तो वी कैन easily calculate all the other values known as turnaround time, waiting time, average turnaround time, average waiting time. Okay, we can calculate all these values, and we can also calculate the throughput of the system. We can also calculate the throughput of the system. Okay, get it? Yes, student? Yes, sir. Okay, so I think for the SGF, it is clear to all of you that how we can do the processing, how we will select the process, and how we will maintain our Gantt chart, and how we can calculate various attributes like waiting time, turnaround time, and all other parameters. Okay, so moving forward. Now, as I told you before that जो आपका SGF है, it is not possible to implement in the system. The reason behind this is that it is not possible for a system to calculate the burst time of each and every process prior to its processing. How we can know that what is the length of the burst time, कितने देर के लिए हमें चाहिए होगा, ये कभी हमें पता नहीं चल सकता है। तो इसको बेस्ट एस्टिमेट करने के लिए वी हैव अ प्रिडिक्शन मेथड, और इसको जो प्रिडिक्शन मेथड है इसको एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग कहा जाता है। टर्म याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग। ओके, यहां पे क्या होता है, वी हैव सर्टेन पैरामीटर्स, Tn क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ nth CPU बर्स्ट, मतलब कि nth प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा एक्चुअल, वो वैल्यू हमें Tn से मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारा पैरामीटर होता है टाउ n प्लस 1, ये हमें प्रिडिक्टेड वैल्यू प्रोवाइड करता है, प्रिडिक्टेड वैल्यू फॉर द नेक्स्ट CPU बर्स्ट। और नेक्स्ट हमारा होता है अल्फा, विच इज नोन एज ए स्मूथनिंग फैक्टर, ये आपके प्रेजेंट एंड पास्ट के बीच में एक स्मूथनिंग की तरह काम करता है। एंड अल्फा is restricted to have a value between 0 and 1. इंक्लूसिव होते हैं, 0 and 1 both are inclusive. तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग का फॉर्मूला होता है, which is tau n plus 1 alpha Tn plus 1 minus alpha of tau n. Okay, so by the help of this formula, we will be able to calculate the value of next CPU burst. Okay, any problem? कोई है भी या सब सो गए हैं? Yes, no problems. No problem, then we can move forward. Okay. So in this particular slide, we have the value of initial guess. It means कि कहा जाए कि
टाउ 0 की वैल्यू आपको गिवन है. ओके, एंड ओके, टाउ 0 की वैल्यू गिवन है विच इज 10, एंड हमारे पास t1 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 6. ओके, ये वैल्यू है 6. अब हमें कहा गया कि we have to find out the predicted value of CPU burst, so which is this tau of n plus 1. इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अल्फा ऑफ tn प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ tau of n. Via this you can calculate the values. Okay, मल्टीप्लीकेशन है ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम. अगर आपको मैंने क्या कहा कि यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाउ ऑफ 1, तो टाउ ऑफ 1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो जाएगी स्टूडेंट्स? कैन एनीवन गिव अ ट्राई टू दिस? प्लीज गिव इट अ ट्राई एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाउ ऑफ 1. आप ट्राई कीजिए. इफ यू विल हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन आई विल try to eliminate those problems. Question is straightforward. You have the value of tau of 0. You have the value of T1. Now I'm telling you to calculate the value of tau of 1. फॉर्मूला दिखाइएगा सर. फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, क्या? अल्फा ऑफ Tn प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ tau of n. This is the value of tau of n plus 1. Formula is straightforward. It is not very typical. I think either most of you are sleeping or something. Because here till now I didn't give the value of alpha. Okay. So it is not possible to calculate that. Alpha having a value of 0.5. Now calculate the value of tau of 1. Yes, 24 students are currently joined. I need response of all of you. Kindly respond. It is not very typical. It is very easy. Yes, sir. How much? Okay, I think we got some response via the chat. Okay, Smriti Lupam has responded. Okay, good. Okay, Manish Kumar is also responded. Manisha.
Oh, Manisha Kumari. Sorry. Okay, it is very easy to calculate that. When the value of alpha is 0.5, it means that you directly you have to just put the values here. This is 0.5, this is 0.5, and multiplying with all those values, you will get the value of tau1 is equal to 8. Next, I want you to calculate the value of tau2. I want you to calculate the value of tau2. Kindly find out. For calculating the value of tau2, I'm giving you 1 minute time. Okay. 1 मिनट में सभी लोग कैलकुलेट कर लें कि tau2 की वैल्यू क्या होगी and kindly respond it. You just have to put the values in the formula and get the result. Okay, some of the responses are coming. Okay. Manisha, check once again. Okay, okay. Uh, 7. Okay, some of you have responded. Some of you have responded the values as 7. Some of you have responded the value as 6. Which one is right and which one is wrong? So the formula was simple. It just you have to put the values. The value of next CPU burst was 4. It is given me in the slide. 4 into 0.5 plus what is the value of tau1? Tau1 we have calculated is 8. So 8 into 0.5. What will the value? 6. सभी इनका जिनका 7 आ रहा था उनका कंफ्यूजन क्लियर हो गया? सर बट यहाँ T2 कैसे यूज होगा सर? T2 कैसे यूज होगा? क्योंकि सर फॉर्मूला tau n plus 1 equal to क्या अल्फा Tn plus 1 minus अल्फा tau n, तो n Yes. equal to 1 हो जाएगा, तो T1 ही तो यूज होगा ना यहाँ. Tau is already given to us in the Tau. graph. Sorry. Yes, yes. Sir, tau is No, no. already mentioned in the graph. Sir, as you. No, it is calculated. It is calculated, not mentioned. Okay. ये जो वैल्यू है आपको यहाँ पे गिवन, ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है तब आई है ये वैल्यू. ठीक है, ये आपको गिवन है, ये वैल्यूज गिवन है आपको, सीपीयू बर्स्ट की वैल्यूज. इनिशियल गैस आपको गिवन था जो कि मैंने बता दिया, और ये वैल्यूज गिवन है आपको. Okay, and I'm telling you to calculate these values. You have to find out these values.
ये कैसे फाइंड आउट होगा? जो प्रीवियस वैल्यूज है टाउ की एंड जो करंट वैल्यू है सीपीयू बर्स्ट की. ओके, you have to multiply this with the help of smoothing factor alpha. So then If you still- it would be 8, sir, because tn plus 1 t2 tau 2 is equals to 8 as you mentioned that. So how sir 6 is coming then? tau 1 is coming as a value as a 8. Yes sir. tau 1 की वैल्यू आ चुकी है 8. तो Yes, अब sir. क्या होगा? 8 into 0.5, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 minus alpha, and alpha has a given value as a 0.5. 1 minus alpha, 8 into 0.5. And what is the current value of CPU burst? 4. Yes. Then 4 into smoothing factor alpha. Then 4 into 0.5 plus 8 into 0.5. What will the value? 7, sir. 7. Are you calculating right? आपको 0.5 मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा है क्या? 8 plus 4 कितना हो जाएगा? 12. 12 divided by 0.5 कितना हो जाएगा? 6. 6 will be the correct answer. Yes, 6 is the correct answer. हो सकता है आप डिवीजन में प्रॉब्लम कर रहे हो या कोई दिक्कत हो रही हो. That is not an issue. Okay. If still you have any doubt, then you can ask. Sir, what is 10? Sir, what is 10 given over there? Sir, it is tau 1. Yeah, initial value of Tau 0. yeah. So what is alpha here? Alpha here is a smoothing factor 0.5. So it will be already given in the question from first, or means it is Yes. determined, or it is determined. No. It will be given in the question, smoothing parameter. If it is not, then you will take it as a 0.5. Okay. ओके. कभी कभी ये होता है कि आपका जो स्मूथनिंग फैक्टर होता है, स्मूथनिंग फैक्टर आपको गिवन होता है 0.4 या 0.6. नहीं गिवन है तब 0.5 लेके आप चल सकते हैं. ओके. एंड इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इट इज गिवन एज 0.5. अगर आप ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे, तो ये जो पूरा टेबल इन्होंने कैलकुलेट किया है, मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि हाउ दे हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू. कैन वी स्टार्ट? ऑल ऑफ यू प्लीज कंसंट्रेट. आई एम गोइंग टू कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यू इन वन सिंगल शॉट. ये देखिए 10 and 6. मैंने क्या बोला कि 0.5 इज आवर स्मूथिंग फैक्टर. दोनों का समेशन कितना हुआ? 10 plus 6 it is 16. 16 divided by 0.5. 16 multiplied by 8. It will be 8. Now for calculating this value, आपका अब जो टाउ हो गया वो क्या हो गया? This will be the tau. This is the current value of CPU burst. 8 plus 4 कितना हो गया? 12. 12 into 0.5 कितना हो जाएगा? 6. अब देखिए 6 plus 6 कितना हो गया? 12. 12 into 0.5 6. अब 6 plus 4 कितना हो गया? 10. अब डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 5. आप इसी तरह से ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. नॉट अ सिंगल वैल्यू, यू कैन कैलकुलेट अरेज ऑफ वैल्यूज.
Any problem? And so these CPU burst time are for different processes. Yes, these are the CPU burst time for different processes. क्योंकि सेम का होगा तो वैल्यू सेम हो जाएगी ना CPU burst की. Okay, I think now you got the glimpse that how we can calculate the or we can predict the value of CPU burst by the help of exponential averaging. Okay. So I'm moving forward. Can we move forward, student? Yes, sir. Okay. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझते हैं एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग को ही. अगर हम स्मूथनिंग फैक्टर की वैल्यू 0 ले लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? टाउ ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा tn प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ टाउ ऑफ n. अगर हम स्मूथनिंग फैक्टर की वैल्यू 0 ले लेंगे तो यहाँ पे इसको अगर हम माने x और इसको अगर हम मानते हैं y, तो अगर मैं यहाँ पे बोला कि इफ आई एम टेकिंग अल्फा एज 0, देन कौन सी वैल्यू 0 हो जाएगी, x और y? Yes, sir. Tn will be 0. Tn term will be x 0. value will become 0. x term will become value as a 0. ओके, तो क्या हो जाएगा, इसको समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो हिस्ट्री है, इट मींस जो हमारा प्रीवियस जो सीपीयू बर्स्ट है उसका इफेक्ट 0 हो जाएगा. Tn हमारा क्या था, सीपीयू बर्स्ट. प्रीवियस जो हमारा सीपीयू बर्स्ट था उसका इफेक्ट अब नहीं रहेगा हमारा इस वैल्यू को कैलकुलेट करने में, क्योंकि हमारी अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है. अल्फा की वैल्यू 0 हो गई तो हमने जो गेस किया था, आपका टाउ की वैल्यू जो गेस की थी वही वैल्यू एज इट इज चलती चली जाएगी. एम आई राइट स्टूडेंट? क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बिकम 1 एंड आपका जो टाउ n होगा वही वैल्यू हो जाएगी आपकी टाउ n प्लस 1 की. तो हमारा रीसेंट हिस्ट्री कहा जाए, इट मीन सीपीयू बर्स्ट जो हमारा किस प्रोसेस का कितना था उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा. हमारा टाउ n प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारा इनिशियल गेस किया गया था टाउ n की वैल्यू वही एज इट इज चलती चली जाएगी. ठीक है. और अगर यहीं पे अगर हम अल्फा की वैल्यू को 1 कर दें, अल्फा की वैल्यू को अगर हम 1 कर दें तो कौन सा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा स्टूडेंट्स? वाई सर. देन y विल बी एलिमिनेटेड. अगर y एलिमिनेट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो हमारा प्रिडिक्शन होगा एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग का, वो हमारा किस पे डिपेंड हो जाएगा, सीपीयू बर्स्ट पे. क्योंकि सीपीयू बर्स्ट की वैल्यू जो होगी x जो टर्म है वही वैल्यू पूरा का पूरा डोमिनेट करने लगेगा, क्योंकि y हमारा क्या हो गया है, 0. अब y के 0 हो जाने से क्या हो जाएगा, अल्फा इज 1. तो अब जो भी सीपीयू बर्स्ट की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, जो कि प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा, कभी 8, कभी 6, कभी 4, कभी 5, इस टाइप से वैल्यू जो आपकी गिवन है वही वैल्यू आपकी एज अ एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग की वैल्यू हो जाएगी. ओके, ओनली द एक्चुअल लास्ट सीपीयू बर्स्ट काउंट. बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. ठीक है. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ स्मूथनिंग फैक्टर. आपका स्मूथनिंग फैक्टर की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या इफेक्ट होगा,
1 होगी तब क्या इफेक्ट होगा। आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, student, kindly respond. Yes, sir. ये And बहुत sir- जगह इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। Sir, सो यस, sir, how we can find the value of tau 0 because there is no process going on, as the tau 0 represents the time when tau there is no 0 will process. be given to you. Tau 0 But sir, what will does be it given to represent? you. It is the initial. It represents the initial guess for the, मतलब कि कितना होना चाहिए हमारा एक, अगर मान लीजिए हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है, तो हम एक इनिशियल गेस पुट अप कर रहे हैं कि इतने देर में एक प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये एक इनिशियल गेस दिया जा रहा है आपको, ठीक है। आपका इनिशियल गेस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिस्कशन कि आपका ये सही है या गलत है। मैं अभी ये सिर्फ बता रहा हूं कि इट इज अ इनिशियल गेस दैट how much time a process will take to complete its execution. Okay. And depending upon the initial guess values and the CPU burst time of a process, we are calculating further values for a process to complete, depending upon the past history as well as our guess. Did you got it? Okay. Hope you got my point. तो अगर हम यहाँ पे क्या करें कि एक एक्सपेंशन अगर हम देखें, एक्सपेंशन को मैं समझाता हूँ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इट इज नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो अगर हम क्या करें, टाउ n+1, इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा tn प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ टाउ ऑफ n। अगर हम टाउ n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, अल्फा ऑफ p ऑफ n-1 प्लस 1 माइनस अल्फा ऑफ टाउ ऑफ n-1। ओके, अगर यही वैल्यू यहाँ पे अगर आप प्लेस कर दें, यहाँ पे प्लेस कर दें तो क्या होगा, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो इनिशियल गेस है, इट ऑलवेज पुटिंग सम वेट ऑन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग। ओके, क्योंकि जब आप इस टर्म को देखेंगे, इस टर्म को यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो टाउ 0 है, टाउ 0 will always come as some value. ओके, और इससे क्या होगा, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय द हेल्प, इसलिए मैंने कहा कि अल्फा विल वर्क एज ए स्मूथनिंग फैक्टर। तो ये जो स्मूथनिंग फैक्टर आप क्या ले रहे हैं, इससे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीपीयू बर्स्ट and past history will have some weight on the current value of tau. Okay, तो आपका जो भी फाइनल वैल्यू निकल के आएगा वो हमेशा that will be affected by the current value of CPU burst
as well as past value of your guess. Okay, student, we are moving forward. Now, we have our next CPU scheduling, which is known as priority scheduling. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. अच्छा, प्रायोरिटी कहीं पे देखा है आपने लाइफ में? प्रायोरिटी Yes, sir. कहाँ पे? प्लीज गिव मी एग्जांपल. So in the shop, when we are going to buy something, the person who comes before gets the higher priority. Though what you are telling is example of queue. मतलब कि आप एक शॉप में गए हैं, वहां पे परचेज कर रहे हैं, तो जो पहले से लाइन में लगे हुए हैं वो इट इज एग्जांपल ऑफ क्यू. ओके सर अगर मान लीजिए बैंक वगैरह में जाते हैं हम लोग, जो थोड़े गांव के बढ़िया लोग हैं, उनका पैसा वगैरह जल्दी जमा हो जाता है या उन्हें निकालना अच्छा. होता है, तो वो प्रायोरिटी होता है. यस यस यस. या फिर आप एक मूवी हॉल में टिकट लेने के लिए जाते हैं, तो कोई वीआईपी पर्सन आता है तो उनको पहले टिकट दे Yes, दिया sir. जाता है आपसे. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रायोरिटी. वेरी गुड वेरी गुड. तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है कि ईच एंड एवरी प्रोसेस, अभी तक जो हम देखे थे, क्या होता था, एक प्रोसेस, वेरियस प्रोसेस होते थे हमारे पास, और उन प्रोसेस के अलोंग क्या होता था, बर्स्ट टाइम गिवन होता था, अराइवल टाइम गिवन होता था. ठीक है. अब उसी के साथ ही साथ प्रोसेस के साथ हमारे पास क्या क्या गिवन होंगे, अदर पैरामीटर्स भी गिवन होंगे. लाइक प्रोसेस होगा हमारे पास P1, P2, P3, P4. अराइवल टाइम गिवन होगा आपका 0 है, 3 है, 4 है, 1 है. बर्स्ट टाइम गिवन होगा आपके पास लाइक 4 है, 8 है, 5 है, 6 है. उसी के साथ साथ अब आपको प्रायोरिटी भी गिवन होगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में. ठीक है. सभी को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर. यस स्टूडेंट. ओके. तो यहाँ पे क्या होगा, along with each and every process we will have their priority. We will have their priority. So this is the main mechanism which we will follow. That a priority number is associated with each process. The CPU is allocated to the process with the highest priority. जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी उसको हम सबसे पहले प्रोसेस एलोकेट करेंगे. ठीक है. हम उसको सबसे पहले उस प्रोसेस को प्रोसेसर एलोकेट करेंगे. अब यहाँ पे जो हम लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं वो ये है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू हाईएस्ट प्रायोरिटी. अगर इस यहाँ पे जैसे गिवन है आपको, यहाँ पे कि जैसे कि गिवन है आपको, मैंने अभी दिया, तो यहाँ पे वैल्यूज गिवन है ना स्टूडेंट आपको, जैसे 2 है, 5 है, 6 है, 8 है. तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ये सिग्निफाई कर रहा है कि उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है. ओके. और लार्जर नंबर है तो इट मींस कि उसकी प्रायोरिटी सबसे लो है. ये हम यहाँ पे प्रेज्यूम कर रहे हैं. आपको क्वेश्चन में गिवन होगा
नहीं अगर गिवन है तो आप वहां पे स्टेटमेंट लिख देंगे कि हाईएस्ट वैल्यू मींस लो प्रायोरिटी। ओके, हम ये प्रेज्यूम करके चल रहे हैं। नेक्स्ट, अब जो आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होता है ये भी दो फ्लेवर का होता है या दो टाइप का होता है। एक होता है आपका प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव को तो समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फॉर द केस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव कैसे वर्क करेगा वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम जो एग्जाम्पल लिए थे उसकी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा कोई प्रोसेस है, लाइक P1। मैं गैंट चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए 0th टाइम पे हमारे पास क्या था, कोई भी प्रोसेस अवेलेबल था? डज वी हैव एनी प्रोसेस अवेलेबल एट 0th टाइम? Yes, sir. Yes, sir. P1, which is P1. Am I right, student? Yes, sir. P1। तो हमारा रेडी क्यू में सिर्फ और सिर्फ क्या था, P1, इसके अलावा और कोई था ही नहीं। तो वी डज नॉट हैव एनी कंपटीशन ऑफ P1। तो हम क्या करेंगे, P1 को डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम एज अ केस लेके चल रहे हैं नॉन प्रिमिटिव केस लेके चल रहे हैं। तो हमने P1 को एलोकेट कर दिया। अब P1 को कितने देर के लिए CPU चाहिए था? 4 के लिए। तो 0 + 4 क्या हो गया, 4 तक के लिए हमने इसको एलोकेट कर दिया। अब देखिए अगर हम देखेंगे तो 4 तक में हमारे पास कौन कौन सा प्रोसेस आ गया था, ये देखिए ये 3 पे आ गया था। तो P1 हमारा रेडी क्यू से निकल गया था, रनिंग में चला गया था। अब हमारा P2 आ गया है, P3 आ गया है एंड P4 आ चुका है। ठीक है, अब इनमें से सबसे पहले कौन आया? P2. गलत, P4, P4, sir. P2 3 पे आया। P4, sir. P4, वेरी गुड, P4 आया है, very good। P4. Yes, sir. अब P4, यस P4 आया है। तो P4 आया था, कितने पे आया था? 1 पे आया है, 1 पे आया है P4। ठीक है ना? Yes, sir. तो अब देखिए अब P4 1 पे आया है, बट चूंकि एक नॉन प्रिमिटिव सिनेरियो था, नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 1 के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे कि 1 टाइम स्लॉट पे क्या करेंगे, क्योंकि एक बार अगर किसी को सीपीयू एलोकेट कर दिया तो वो टिल कंप्लीशन वो सीपीयू उसके पास रहेगा। ये फेनोमेना है किसका, नॉन प्रिमिटिव का। तो P4 के पास सीपीयू है, P1 के पास सीपीयू कब तक, 4th यूनिट तक के लिए। जैसे ये 4th पे काम कंप्लीट करेगा तो हमारे पास अब वी हैव अ पूल ऑफ प्रोसेस, और इस पूल में कौन कौन से हैं, P2 है, P3 है, P4 है। अब हम इनका सबसे पहले चेक करेंगे क्या कि प्रायोरिटी क्या है। तो P2 की प्रायोरिटी है 5, P3 की प्रायोरिटी है 6, P4 की प्रायोरिटी है 8। किसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है स्टूडेंट? P2. P2. P2 की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, P2 को हम सीपीयू एलोकेट करेंगे। कितने देर के लिए एलोकेट करेंगे स्टूडेंट? 8 टाइम के लिए करेंगे सर, तो 8 + 4. 8 टाइम के लिए करेंगे, 8 + 4 is 12। अब P2 भी बाहर चला गया, कोई नया प्रोसेस आया है क्या?
कोई नया प्रोसेस आया है क्या? नहीं, P3 No, and sir. P4 नो ही नो है। सही है। P3 and P4 ही है, तो इसका काम कंप्लीट हो गया है, इसका काम कंप्लीट हो गया है। अब किसका काम बाकी है? P3 एंड P4 का। तो P3 P4 का हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रायोरिटी देखेंगे। तो प्रायोरिटी किसकी हाई है स्टूडेंट? P3 P3 की। वेरी गुड। तो P3 को हम क्या करेंगे? प्रोसेसर एलोकेट कर देंगे। कितने देर के लिए उसको चाहिए प्रोसेसर? 5 यूनिट के लिए चाहिए। तो 12 प्लस 5 इज 17। 17 पे जाकर के इसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? अब हमारे पास कौन सा प्रोसेस रह गया है? सिर्फ P4। तो कोई कंपटीशन है नहीं, तो हम क्या करेंगे? P4 को एलोकेट कर देंगे। कितने देर के लिए एलोकेट करेंगे स्टूडेंट? 6 यूनिट के लिए। 6 यूनिट के लिए इट मींस कब कंप्लीट होगा ये? 23 पे। तो नाउ दिस इज द सिनेरियो ऑफ नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। समझ में आया सभी को? सर एक बार P2 के लिए बताइए ना। किसके लिए? P2 सर। P2 के लिए। यस सर। हाँ, चलिए सबसे पहले P2 हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका कि अराइवल टाइम कब है? 3, और इसका प्रायोरिटी क्या है? 5। तो सबसे पहले लेकिन P1 हमारा अराइव हुआ था 0th टाइम पे, और उस समय और कोई भी प्रोसेस हमारे पास था नहीं। तो हमारे रेडी क्यू में सिर्फ और सिर्फ P1 था। तो हमने क्या किया? P1 को सेलेक्ट कर लिया और उसको प्रोसेसर दे दिया। अब कितनी देर के लिए देंगे हम? 4 यूनिट के लिए देंगे। तो 0 से लेके 4 तक दे दिए, तो इसका काम हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास हम यहाँ पे देखेंगे कि 4th पे जहां पे जाके काम कंप्लीट किया है, वहां पे हमारे पास और कौन कौन से प्रोसेस अब रेडी क्यू में आ गए हैं। तो हमारे पास P2 आ चुका है, P3 आ चुका है और P4 आ चुका है। अब इन 3 जो प्रोसेस है P2, P3 एंड P4, इनमें से अब हम कंपेयर करेंगे कि किनका प्रायोरिटी हमारा सबसे कम है। तो प्रायोरिटी हमारे पास गिवन है 5, 6 एंड 8। अब हमें पता चलेगा कि P2 की प्रायोरिटी क्या है? 5। और हम ये क्या प्रेज्यूम करके चल रहे हैं कि लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर means that it has a highest priority. It means now among all the 3 process, P2 has a highest priority. तो अब हम क्या करेंगे? प्रोसेसर को P2 प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? कितनी देर के लिए प्रोवाइड करेंगे? 8 यूनिट के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमने P2 को सेलेक्ट किया, P2 को CPU प्रोवाइड किया और उसका एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया। एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू नो अबाउट P2? यस सर। यस सर। कंप्लीट है? यस सर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं कंप्लीशन टाइम। तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या होगा स्टूडेंट? 4 वेरी गुड, 4। P2 का क्या होगा कंप्लीशन टाइम? 12 P3 का क्या होगा? 17 23 P4. Now I think you can calculate the values of
turnaround time, waiting time, average turnaround time of the system, average waiting time of the system. Can you do that? Yes, student, can you do that? Yes, सर sir. रिपीट कीजिए क्या क्या बोले सर? Sir, turnaround time of each and every process, waiting time of each and every process, average turnaround time of the system, and average waiting time of the system. Please calculate all these values. I'm giving you 3-minute time. मैं इसको इरेज करूं कर सकता हूं क्योंकि मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए तैयार करने वाला हूं. I'm erasing these values. If anyone want, Last then sir. please. Yes. So we have dark class right now from 11 a.m. Okay. Ma'am is You have a. messaging in the official room. Okay. Okay. So. Still we have time, 6-minute time. I'm giving you link for today's class attendance. आप लोग को पहले बताना चाहिए था कि डार्क की क्लासेस है. मैं सोचा था डबल लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे. ओके, कोई बात नहीं. प्लीज कैलकुलेट दोज वैल्यूज. And in the next class, I gave you the link for today's attendance. Please fill it up. In the next class, we will start with the today's topic. I think non-primitive priority scheduling is completed. In next class, we will start from priority scheduling, which is primitive in nature. Okay. मैं आपको जो भी वैल्यूज कैलकुलेट करनी, इसमें ज्यादा कुछ वैल्यू आप कैलकुलेट करने के लिए रहा नहीं है. आपको टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है. And if you have any doubt regarding anything related with operating system, please feel free to ask. Yes, yes. Prem Prakash Gupta has responded certain values related with turnaround time. I hope this is the values for each and every process. Okay. Yes. Okay. Very good, Prem. Very good. What about the last value? Value of turnaround time of P4. Is it right? Okay, 21 of you have responded for today's attendance. Thank you, all of you. Have a nice day.